का पहला दिन, पहला सत्र। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। जो अंदर जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने की कोशिश करेंगे और दूसरा सेशन जो होगा 7 बजे से 8:30 बजे का, उसमें ध्यान साधना करेंगे। और अभी का जो स्टार्ट हो रहा है शिविर 4:30 बजे से, ये इसमें 6:30 बजे तक हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। जो अभी तक कोई साधना में प्रॉब्लम्स आई हो, समस्या आई हो, कुछ अनुभव किए हो, उस पर बात करेंगे। हरि हर। Welcome to Darbar. Today's session will be there will be the second session where it will be Dhyan Sadhana. Část bude Dhyan Sadhana. The first session you may have the questions, so please it's the time that you can put it forward before Guru. Týkající se sadány a věcí s tím spojený, tak tohle je váš Your questions that you might need to answer all your queries and quench your. Any question? Máte nějaké otázky? Yeah, please put forward whatever question that you have. Please do ask. Jakoukoliv otázku máte, prosím, zeptejte se nyní. Já jen něco k sadáně. Zvuk A, M. A mám poměrně dlouhé, U také, ale při M mi přijde, že velmi krátce vydržím a jako bych měla nad očima nebo za očima oči a ten stejný tlak. The question Veera had is that during sadhana, A, U, she does A, U, it's perfect long, but when she does she cannot prolong it, it's very short, and she feels pressure like in the middle of her head, behind the eyes, and the same thing happens when she wakes up. She cannot open eyes, and she's got the same pressure inside the head. गुरुदेव, वीरा का प्रश्न है कि ब्रह्म विराट क्रिया करते समय जो पहला मणिपुर और अनाहत तक वो ठीक से जाती हैं, मकार में पहुंचते ही वो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग नहीं कर पाती हैं और उस समय मस्तक के ऊपर मेधस क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्पंदन होता है और यही चीज सुबह उठते समय होता है। यह इनका प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न किया है, सबके समझने लायक है ये। This is very important and very good question, and this is a question with the answer whereof should be understood by everybody. Tohle je velmi důležitá otázka a odpověď je potřeba, aby porozuměli úplně. वेरी गुड। इस प्रश्न का आना ये सिद्ध करता है कि साधना भी ठीक से हो रही है और ऑब्जर्वेशन भी सही से हो रहा है। This question itself reflects and proves that you are on the right path of sadhana, you are doing it correctly, and you are able to observe the process correctly and thoroughly. Otázka sama o sobě ukazuje na to, že jsi na správné cestě a že správně dokážeš pozorovat vlastně ten svůj progres. पहले भी मैंने इसको कई बार दोहराया है, आज आपको फिर से इधर ध्यान आकर्षण करेंगे। जब तक स्मृतियां शेष रहती हैं जीवन में, हमारे चित्त में, तो हमें बार बार जन्म लेना होता है। जिस शरीर यात्रा में दी गई स्मृतियां जब समाप्त होने लगती हैं तो वह शरीर यात्रा भी समाप्त हो जाती है। ये नियम है। तंत्र में मरते हुए आदमी को दोबारा जिंदा करने का वही उपाय है कि यदि स्मृतियां नष्ट हो गई हैं तो उसको पुनः से स्मृतियां दी जाएं। स्मृतियों में स्वतः ही अपने प्राण होते हैं। स्मृति अपने आप में एक स्वतंत्र शरीर के रूप में कार्य करती है। तो जब स्मृतियां दे दी जाती हैं मरते हुए व्यक्ति को और अधिक यानी ज्यादा काम दे दिया गया, एक आदमी सोने जा रहा है, उससे कहा नहीं सोना नहीं भाई, अभी ये काम, बहुत नींद आ रही, नहीं अभी ये काम है, अभी इसको करके तब सोना है। तो फिर वो करेगा घंटा 2 घंटा, कैसे भी करेगा तो समय उसका बढ़ गया, नहीं सो पाया। ऐसे ही मृत्यु का है, यदि स्मृतियां उसको मरते हुए आदमी को दे दी जाए, जिसकी श्वास निकल रही है, मर रहा है, रोज करता है दरबारी, मरते हुए को श्वास से दे देना। यदि उसके शरीर के अंग प्रत्यंग ठीक है, जीवन शरीर को चलाने में सक्षम है, तो वो स्मृतियां तुरंत काम करती हैं और व्यक्ति फिर से लगता है जिंदा हो गया और अपना काम करता है। तो स्मृतियां मिल गई। पहले तो इस बात को ठीक से समझ लेना है। This is very important question, and Gurudev has been repeatedly, even in the past, have spoken on the subject that the life continues as long as the chitta holds memory reminiscences or the smriti. Tohle je velmi důležitá otázka a pokud vlastně jsou paměti ukládány, uložené paměti nebo zbytky paměti. The person is born and reborn again. A dokud vlastně ty paměti a Mind can be brought back to life when the smriti or memory reminiscences are pokud se do těla znova nebo do čity znovu vpraví zbytky těch pamětí. that darbar, and if you just give him certain tasks. Někomu chce spát, tak když jsou इसी क्रम में जब आगे budu déle. इसी क्रम में जब आगे समझते हैं तो बहुत अद्भुत है। प्रतिदिन जब रात्रि में हम सोते हैं तो एक अद्भुत घटना घटित होती है, जो रोज घटित होती है, इसलिए सबके लिए सामान्य है। अन्यथा रात्रि में जब हम सो जाते हैं, वो घटना है, क्रिया नहीं है। क्रिया वहीं तक है जहाँ तक आप बिस्तर पे गए, लेटे, आंखें बंद की, यहाँ तक तो क्रिया है। नींद कब आ जाएगी पता नहीं, निद्रा जब आती है तो घटना है। उसका आपको कभी नहीं बता सकते आप कि एग्जैक्ट हम इतने बजे सोए थे, क्योंकि घटना घटित होती है। जैसे ध्यान कब घटित होगा पता नहीं आपको। ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकाग्रता करेंगे, सब ठीक, वो सब ध्यान रहेगा। ध्यान कब घटित होगा ये पता नहीं होता। ऐसे ही सारा पता रहता है। मृत्यु कब होगी पता नहीं रहता, क्योंकि मृत्यु भी एक घटना है। जन्म कब होगा आपका पता नहीं आपको, वो भी एक घटना है। तो इसी प्रकार से प्रतिदिन सोना ही एक मृत्यु है, छोटी मृत्यु है, जो रोज होती है, प्रतिदिन होती है। हम सोते हैं और मृत्यु हो जाती है। प्रातः काल फिर से जन्म होता है। ये आपका जन्म मृत्यु का रोज का क्रम है। इसको बहुत ध्यान से गहरे में ले जाके समझना है। Everybody has to very deeply understand that every day and that sleep actually death and reborn again in the morning are incidents one after another which we do not realize as to when did it go authentic dhyan that you do not. Every day we go to bed and we die and we are born again the next many more things and have to be very. आप सभी ने पहले भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों
आप सभी ने पहले भी सुना होगा कई बार कि लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते हैं, अपने आराध्य के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। कहते हैं कि जब अंतिम समय आएगा और किसी ने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा है तो बोलता है नारायण। ऐसे नारायण के स्मरण से अच्छी स्मृति आती है और वो नारायण को लोग को प्राप्त होता है। शरीर छोड़ते समय अंतिम इच्छा उसकी नारायण के साथ जुड़ जाती है। तो नाम रखने के पीछे जो उद्देश्य होता है सबसे बड़ा, बार बार सुमिरन हो और मृत्यु के समय गहरा सुमिरन हो तो हम उसी लोक से जुड़ जाएं, अच्छे एक लोक में जाएं और हमारा पुनः से जन्म अच्छे लोक में हो, ऐसा माना जाता है। इसी क्रम में ये भी माना जाता है, ये प्रमाण है इस बात के, दरबार के पास तो ढेरों प्रमाण है कि जब आप मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा होती है, अगला जन्म जहां भी होगा उस इच्छा के अनुसार ही होगा। ये नियम है। अंतिम इच्छा ही मृत्यु के समय की, वो जन्म के समय की प्रथम इच्छा बन जाएगी। यानी जन्म और मृत्यु दो घटना ना होकर के हेड एंड टेल है। मृत्यु और जन्म एक जैसा है, जन्म और मृत्यु एक ही घटना का नाम है। एक तरफ मृत्यु हो रही होती है, दूसरी तरफ किसी भी दूसरे लोक में, किसी दूसरी योनि में जन्म हो रहा होता है। वो जन्म आपकी अंतिम इच्छा के अनुरूप हो रहा होता है। यानी आखिरी इच्छा मृत्यु के समय जन्म हुआ, पहली इच्छा वही, अब उसी इच्छा के वशीभूत होकर के पूरा अगला जन्म उस इच्छा के प्रधान इच्छा बन जाएगी, उसके आसपास घूमेगा। Like every morning you wake up, it's a new birth. Every night that you sleep is a death. So you play in every day we experience being born and die. Každé ráno Take you to the next level of life and death. At one point, one is dying. And kdy na jedné straně je smrt a na druhé straně cycle actually is aimed. This is the continues, which is two sides of the same coin. In India, there has been tradition that people, deities, gods, would help the dying person in accordance to the desire. a to je z toho důvodu, aby se vytvořila s tou pamětí. So it's a unique To, co se potom děje, se děje v souladu. two sides of the same coin. Takže život a smrt, Cycle. to je cyklus. यह चिरकालीन निद्रा है, यह मृत्यु है जो आपको अगली शरीर यात्रा के लिए तैयार करती है। तो जैसा मैंने कहा कि वेरा का जो ये प्रश्न है इसलिए बहुत अच्छा है, प्रमाणित करता है कि ठीक से ध्यान दे पा रही है, ठीक से ऑब्जर्व कर पा रही है, इसलिए प्रश्न उनका ठीक ठीक आया है। अगर व्यक्ति प्रश्न ठीक कर रहा है, इसका अर्थ हुआ कि उसका अध्ययन चल रहा है, सही तरफ चल रहा है। It's the death is a process which is a prolonged sleep to be born again, and as you stay awakened, you observe the progress, you observe everything that's happening in and are able to analyze, practice. A smrt je proces a toto vlastně věda je schopná a इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं, ये मृत्यु है, proto ta otázka byla tak správná otázka. ये मृत्यु है। इसी प्रकार जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं तो यह छोटी मृत्यु है। सोते समय चूंकि आप साधना करती हैं, साधना करते करते सोती हैं, तो वह अंतिम स्मृति रहती है घटना के समय, निद्रा के समय। प्रातः काल जब जन्म होता है वो भी एक घटना है। प्रातः काल जब आंख खुलती है तो वही स्मृति, वही ध्यान की, साधना की वो पहली स्मृति बन जाती है। इसलिए रात्रि को जो अंतिम क्षण में ये करती हैं, वो प्रातः काल जब निद्रा खुलती है तो वही ठीक ठीक इनको वही महसूस होता है, वही होता है। यही नियम है और ये सही से कर पा रही है, इसके लिए इनको बहुत धन्यवाद। The question that Veera had, that when she does the kriya and at the end, at Makar, at this top one, there is vibration, and they mentioned that every is the process of dying and drives your journey well before while feeling this, and when she wakes, good sign, and that is why it is a good question and good experience. Spánek je vlastně smrt je vlastně prodloužená, když se probouzí, to znamená večer. To znamená, že vlastně jedno je vlastně identický pocit má při té sadáně, signál ho posunuje dál, tak je to i při ये बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने बताई और सभी श्रोता जो भी देख रहे हैं उनके लिए यह सबक होना चाहिए जो गुरुदेव ने बताया। और खुद का पैमाना है वही कि हम सोने के आखिरी समय में मेरी क्या स्मृति बनती है और उठते समय क्या होती है, उसी से हम अवलोकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। उससे आप जांच सकते हैं अपने आप को जी गुरुदेव कि हम रात में आखिरी में कौन सी स्मृति में थे। जी। जब सुबह उठने पर जो भी आपको पहला भाव आए, पहला विचार आए, आप उसको ऑब्जर्व करिए। इससे आपको ये प्रमाण मिलेगा कि रात को सोते समय आपके पास विचार कौन सा था। आपको किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जांच सकते हैं। सुबह उठ करके जो पहला विचार आए, मतलब वो आपका रात में सोते समय अंतिम विचार था, तो आप उसमें सुधार ला सकते हैं। अगर सही है तो जारी रख सकते हैं, गलत है तो कोशिश करें। This is a great revelation out of this question, which Gurudev has been repeatedly saying in his discourses, is the point you can actually examine yourself at the time when you wake up in the morning, and the very first thought that comes into you is that it is good. If you were on the wrong path, with the very first thought, have a vlastně usínání při probuzení, tak jsme odcházeli spát. Ta vás vlastně, ta myšlenka vás požaduje a zjistit vlastně, kde jste udělali chybu a co je špatně. इनके उत्तर से संतुष्ट है? Are you satisfied? Are you satisfied? Jste spokojená s odpovědí? Are you satisfied? Are you satisfied? Jste spokojená s odpovědí? Are you satisfied? Are you satisfied?
आप अपने क्वेश्चन के उत्तर से संतुष्ट हैं? वीरा, आर यू सेटिस्फाइड? Are you satisfied? Jste spokojená s odpovědí? एनी मोर क्वेश्चंस? Další otázky? I would request everyone, please do not feel shy of asking questions. This is a lifetime opportunity when you are directly interacting with Gurudev and you have the opportunity to have the doubts clear in the very first go. Máte výjimečnou příležitost přímého setkání. Máte? Určitě se Gurudeva zeptejte. Paulina, get the mic. Okay, no problem. Já jsem spíš měla problém vlastně té mantře jedničce, v tom prvole, tanku mantru, a měla jsem prostě, když jsem to porovnala s tou nultou mantrou, jako u toho jsem si v klidu dokázala sednout. Okay, the question she's got is she did Tantra Mantra 1 and she couldn't tune in into that mantra. Tune in, like she was restless, mechanical, couldn't get, consumed by the mantra. It was a feeling like it was not her. When she did the 0 level, it was okay, but with level Tantra Mantra 1, she could not adjust, feel like not her. गुरुदेव पावलिना का प्रश्न है कि जब वह मंत्र दीक्षा में थी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तंत्र लेवल 1 में पहुंचने के बाद उसको उसकी दिक्कतें बढ़ गईं और उसे यह बार-बार होता रहा कि हर चीज उसके साथ गलत हो रहा है, वो किसी तरह से कर रही है लेकिन चीजें उसके अनुकूल नहीं होकर प्रतिकूल रहे और इससे वो परेशान है। यही गंभीरता से वाच करने की आवश्यकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो बहुत ही विषैले कांटे हैं। जो अनुकूलता है वो सोने का कांटा है और जो प्रतिकूलता है वो बबूल का कांटा है दोनों ही कांटे। This is to be observed very judiciously. Tady je potřeba pozorovat opravdu pozorně. Things that appears to be in favor of you and things that appears to go. Kdy se cítíme, že něco je pro mě. The one that appears to be all right with you. Jehla, která je ale zlatá. अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है। Ale pořád je to jehla. अनुकूल होता है तो अच्छा लगता है, सोने का है कोई बात नहीं, चुभ रहा है कोई बात नहीं, फिर भी पैसा नंबर 1 का है चाहे नंबर 2 का है, अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरा दो नंबर 2 का पैसा तो कूड़े का ढेर है। बातें पता लगता है जब आदमी कहीं फंसता है या आवश्यकता होती है तो दोनों ही पेनफुल है। एक सोने का कांटा है वो भी चुभन देता है और जिंदगी भर हम सोने के कांटे बिनते रहते हैं। अभिलाषा रखते हैं कि हम अनुकूलता में जिए, भले ही कष्टकारी है, अनुकूलता में जीते रहे। खूब खाना है बाहर का, स्वाद ले लेकर के, चाहे जहरीला भोजन है, खूब स्वाद लेकर के खाना है, अनुकूल है, लेकिन कालांतर में वो विष का काम करता है। ऐसे ही आपकी प्रतिकूलता है, किसी चीज को जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप प्रतिकूल ही मानते हैं। जब शरीर में कोई रोग होते हैं और सर्जरी होनी होती है, सर्जरी है अच्छे के लिए कि आपके अंदर जो सिस्ट है, जो ट्यूमर्स है वो बाहर निकाले जा सके, सड़े गले अंग बाहर निकाले जा सके, आपको बचाया जा सके। फिर भी सर्जरी स्वीकार नहीं होती है, अनुकूल नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप सर्जरी करा के अच्छा महसूस करते हैं। दरबार भी ऐसे ही सर्जरी करता है। आपकी जो अनावश्यक अनुकूलता है उसे निकालकर दरबार नष्ट करता है, जो कि आपकी एक प्रकार की प्रतिकूलता ही होती है। आपके कष्टों को दरबार निकाल रहा होता है बाहर, आप उन कष्टों को देखते हैं बाहर निकलते हुए अपने से, तो आपको भय आता है, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ, ये क्या हो, वो जा रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है और इसके बाद फिर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये व्यवस्था है। This is a system, the system where it appears to be in favor of you and one that appears to be not in favor of you. You have, and you always things go in the right direction. Časem zjistí, že to, co se zdálo jako तो हमें ये समझना होगा कि जब ध्यान साधना का स्तर बढ़ता है, लेवल आपका अप होता जाता है, वैसे वैसे आपके शरीर के जन्मों जन्मों के जो कष्ट हैं, जो भोग हैं, वो निकलते हैं और नष्ट होते हैं, जिन्हें देखकर आप घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, दृष्टा भाव में स्थिर होना है। दृष्टा भाव में स्थिर होना है, लिप्त हुए बगैर दूर से देखना है, उसमें अपना भाव नहीं जोड़ना है। आप जो भाव जोड़ेंगे उसी भाव से वो बढ़ करके और बड़ा हो जाएगा। इसलिए दृष्टा भाव से देखना है कि ये जा रहा है, जाने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। और ऐसा करने से आपकी अनुकूलता और प्रतिकूलता से आप बाहर आ जाते हो और आप निरंतर सुख की ओर गति करने लगते हो। तो कंटिन्यू हैप्पीनेस की ओर हमें बढ़ना है। जो हमारी सुख और दुख की जो प्रणाली है उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम दृष्टा भाव में, साक्षी भाव, उन चीजों को सिर्फ देखते रहें। When you are elevated to the next level in your sadhana, as things that you have accumulated over, that's accordingly people often get disturbed. अच्छा You have to be very neutral into the process, but look it from a distance. तो कांटा लगता है तो कष्ट होता है और जब कांटा बाहर निकाला जाता है čištění, které tě přivede k tomu. तो कांटा लगता है तो कष्ट होता है और जब कांटा बाहर निकाला जाता है कष्ट दूर करने के लिए तो भी कष्ट होता है। तो ध्यान साधना में जब आपके पास ऊर्जा बहुत होती है दरबार की, तो आपके भोग तेजी से कटते हैं, जो हजारों जन्मों में नहीं कटते, वो इसी जन्म में कट करके नष्ट होने के लिए आपकी तैयारी है, ताकि आप इन सब से मुक्त होकर के और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सके। इसलिए आपको खाली करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ध्यान साधना के द्वारा दरबार की शक्तियों के संरक्षण में आपका जो भरा हुआ घड़ा है, जो डंप हो गया है काफी तमाम खराब चीजों से, अनावश्यक चीजों से, वो आपका खींच के निकाल के बाहर किया जा रहा है, जो आपको असहज लग रहा है। इतनी बात है। तो दृष्टा भाव से देखना है, दूर से देखना है कि ये मेरा नहीं, जाने मेरे अच्छे के लिए हो। So this is the cleansing process which Darbar actually initiates, oversees. Já bych se Gurudeva rád zeptal na hudební meditaci, na to, jestli... Satisfied? Okay, thank you. Any question? Yes. Já bych se, Any question? Yes. She satisfied? Okay, thank you. Any question? Yes. já bych se Gurudeva rád zeptal na hudební meditaci, na to, jestli v těle, po trupu, v krku a v hlavě a někdy necítím vůbec nic, tak jestli lze tomu ještě nějak pomoct.
Sometimes he does to help it, because sometimes he feels like the shivering in his body and like different vibrations, etc., and sometimes nothing. So he's asking what he can do to help the work. डॉक्टर जोत का सवाल है गुरुदेव कि जो संगीत में ध्यान दरबार कराता है उसके अतिरिक्त कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि कई बार इनका अनुभव ऐसा होता है कि उसमें शरीर के विभिन्न भागों में स्पंदन होता है, बहुत वो एंजॉय करते हैं, झूमते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल खाली हो जाते, तो जब ये खाली हो जाते हैं तो इनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ और करें। अच्छा सवाल है। अच्छा ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर साहब का। सारा प्रयास खाली होने का ही है। जब आप खाली हो जाएं, ये आपकी प्रतीति है कि हम खाली हो गए, ऐसा प्रतीति है। वास्तविकता ये है, जब दोबारा आप ध्यान करते हैं, दोबारा से फिर आप भरा हुआ पाते हैं, फिर आपको खाली फिर करते हैं, अगले दिन फिर भरा हुआ होता है, फिर खाली करते हैं। ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों स्मृतियां हैं जो आपसे जुड़ी रहती हैं और आप इस क्रम में बराबर लगे रहते हैं। इसे अभ्यास कहते हैं। इसी अभ्यास को करते करते जब आप सध जाते हैं तो चीजें अपने आप निकलना शुरू होती है। अभी तो प्रयास है खाली होने का, फिर आपके अप्रयास से ही चीजें खाली होना शुरू हो जाती है। आपके पीछे के शरीरों का, आपके सूक्ष्म शरीर का एक अभ्यास बन जाता है और वो ध्यान में ही रहता है, साधना में बना रहता है, तो आपकी चीजें अपने आप ही निकलती रहती है। इसलिए इसे जारी रखना है। और आज पहला दिन है वर्कशॉप का। अभी आप दरबार में यहाँ 10 तारीख तक हैं, 10 अगस्त तक प्रतिदिन के शिविर में बिना संगीत के भी आपको साधना कराई जाएगी, तो आप उसको कर सकते। This is a practice. To je praxe. Every time when you feel good, there are vibrations in the body out of music. Pokaždé, když se cítíš dobře a cítíš vibrace, And během tohoto procesu of that cycle, praxe, jiná věc se děje. identically Tomu se říká praxe. stay here till 10th of August, and we shall be having the practice is to shake Shiva. It's as simple as that. To je tak jednoduché. Any more questions? Jaroslav, have you any questions? Yes. Jaroslav má otázku. Good. Má první otázka je, čím můžeme Gurujiho potěšit? Jaroslav is asking how can we please the Gurudev the best? We please the Gurudev the best. जारोसलाब का प्रश्न है गुरुदेव Yes. कि जारोसलाब का प्रश्न है कि हम गुरुदेव को खुश और आनंदित कैसे रखें। बहुत सीधा सरल उपाय है। जब आप सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो हम भी आनंदित रहते हैं। It's a very simple answer. When you are happy, you are joyful, automatically Gurudev is also happy. Jednoduchá odpověď. Pokud vy jste šťastní a radostní, tak já jsem šťastný a radostný. Stephen wants Yeah, Stefan. Mike. Before, one moment. Before, if you have any of you have a question, कोई भी जिनका प्रश्न हो अपना hand raise करेंगे ताकि माइक उन तक पहुंचा दिया जा सके. Please. First of all, I would like to thank to my colleagues, sadhaks, for those questions and the answers of Gurudev, because all of them were very useful for myself and try to understand and help me to understand my journey. प्रथम जो साधकों के प्रश्न थे उसके लिए धन्यवाद और गुरुदेव का उत्तर के लिए विशेष धन्यवाद, क्योंकि वह प्रश्न और उत्तर उनके लिए भी मार्गदर्शन का काम करे. Omlouvám se ještě česky. Chtěl jsem poděkovat Gurudevovi a svým kolegům sadakům za předchozí otázky, protože všechny otázky i odpovědi mi pomohly na mé cestě. A má osobní otázka se týká se toho, do jaké míry já můžu vnímat jako pozitivní vývoj v případě růstu. Vidím a vnímám, že ubližují některým pomocno nebo nápomocno, nebo I will try to do my best. I understand that I am going towards right direction. I'm developing myself, I'm improving myself, even though sometimes I see the failures retrospectively harm people in my vicinity. I do harm the closest people, and I try to not influence it, or I am influencing it, and I'm creating an influence the decision I am making, not necessary, and I'm already creating my. जो मैं कर रहा हूँ वह तो ठीक कर रहा हूँ, वह कौन सी लाइन है जहाँ पे वह यह समझ पाए कि जो मैं ये अपने कर्म को लेकर स्टीफन चिंतित इस रूप से हैं कि वह कौन सी लाइन है जहाँ पे वह यह समझ पाए कि जो मैं कर रहा हूँ वह तो ठीक कर रहा हूँ, वह कौन सी लाइन है जहाँ से कर्म का निर्माण हो जा रहा है कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या किसी को नुकसान पहुंचा, जबकि प्रयास तो हमेशा यह रहता है कि मैं अच्छा करूँ और उस क्रम में लगातार अच्छा होता चले और वो विकास करते चले, लेकिन कर्म कहीं नए संस्कार न बना दे, वह कौन सी लाइन है वो उसको समझना चाहिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. It's a good question. सभी के लिए है ये क्वेश्चन. All. To je dobrá otázka, dobrá pro všechny ostatní. राहुल ने भी मिलता जुलता यही क्वेश्चन अभी पूछा है. राहुल ने पूछा है कि इस त्रिगुणात्मक सत्ता से हम बाहर कैसे जा सके, कैसे हम अपने कर्मों के प्रभाव से बच सके, कैसे हम सतोगुण से भी पार जा सके. बहुत अच्छा. तो मिलता जुलता क्वेश्चन मिस्टर स्टीफन का भी है. गुड क्वेश्चन. संसार के दो सबसे बड़े रोग हैं मनुष्य जाति में. मनुष्य जाति में इसलिए कि मनुष्य के पास अपने कर्म करने की स्वतंत्रता के साथ साथ उसकी कल्पनाशीलता भी है. यह मनुष्य को, मानव को विशेष बनाती है सभी जीव जंतुओं से. मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जीव जगत में, जीव जंतु में, किसी भी अवस्था में कल्पनाशीलता और कम कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है. जैसे आप कल्पना करते हैं कि हम 10 लाख पौधे अपने जीवन काल में लगाएंगे, ये कल्पना मनुष्य कर सकता है. यह कल्पना कोई जीव जंतु, पशु पक्षी नहीं कर सकता. ये कल्पना आप कर सकते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे 10 लाख तो उससे धरती पर खुशहाली आएगी, हरा भरा होगा और हमारे लिए ऑक्सीजन तैयार होगी और वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ग्रहण करेंगे, उनके काम आएगी. ये कल्पनाशीलता है आपकी. उसी कल्पनाशीलता के आधार पर आपकी
कर्म स्वतंत्रता है कि आप इतने पौधे लगा सकते हैं, लगाया आप लगा भी सकते हैं। ये दोनों शक्तियां मनुष्य जाति के पास। हाथी कितना बलशाली है लेकिन एक पौधा लगा नहीं सकता, कोई जीव जंतु नहीं लगा। तो कर्म करने की जो स्वतंत्रता है मनुष्य के पास, वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है। अब जब कर्म करते हैं तो उसका भोग बनता है। इतना ही नहीं, आप कल्पना करते हैं उसका भी भोग बनता है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित। मन में सोचते हैं, मनसा वाचा बोल देते हैं, बोला हुआ, कर्मणा कर गए तो कृत कारित अनुमोदित कराया गया। किसी ने किया उसको समर्थन कर देना, यस तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत बुरा किया, कुछ भी, तो उसका आपका भोग बनता है, अच्छा या बुरा जरूर बनता है। तो कल्पनाशीलता से भी आपके भोग घटते या बढ़ते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके अच्छे भोग बनते हैं, खराब सोचते हैं तो खराब भोग बनते हैं। अगर खराब सोच के भोग बनते हैं तो अच्छे सोच के भी भोग बनते हैं। तिजोरी का ताला आपका खुला हुआ है, अगर आप अच्छा डाल रहे हैं तो खराब भी जाएगा उसके अंदर, दोनों जाएगा। तो इस कल्पनाशीलता के आधार पे आप सबके पास कर्म स्वतंत्रता है लेकिन भोग बनते हैं। कंप्लीट कर, तीनों गुण कैसे त्रिगुणातीत पे आ जा रहे थे। So, बेसिक क्लियर हो जाए। जी, जी, Guru. So it's very important question that Stefan asked and identically Rahul put in the seed to grow a plant, whereas the do it through expression in words, or that is all set to happen. A vlastně všechno to začíná už pro ale za následek karma. Karma fal created of being good, bad. Pokud myslíte špatně, pozitivní či negativní. जी, Guru. जीव जंतुओं के पास, सभी पशु पक्षियों के पास आपका अगला प्रश्न बनेगा मेरे पीछे दिए गए उत्तर के आधार पे कि फिर वो अपना सारा कार्य कैसे करते हैं अगर कल्पनाशीलता नहीं है तो। You might have a question coming in that if the animals they do not have the ability to conceptualize, how do they live and how do they act and how do they do their normal routine works? Může zejít otázka z tohoto, jak to teda dělají zvířata, které nejsou větší koncepce, jak teda vlastně vůbec. Am I correct? जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं वो अपनी सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उस सीमित कल्पनाशीलता के आधार पर, उतनी ही कल्पनाशीलता के आधार पर उतना ही कर्म कर पाते हैं। The answer is very simple. The animals have a very limited ability to calculate and accordingly act only in accordance to that very limited. A zvířata mají schopnost, jsou velmi limitovány. Yes, like they will always move identical. So every animal will have the identical reactions. Identical Každé to actions. zvíře bude mít vždycky identickou reakci. तो उनकी सीमित कल्पनाशीलता उस आधार पर सीमित कर्म की स्वतंत्रता। कर्म है चार विषय के आधार पर, जो चार विषय हैं, ये विषय का मतलब दोष है जिनके बगैर रह नहीं सकते। हाँ, विषय का अर्थ है आसक्ति जिनमें बनी हुई है, उस आसक्ति के आधार पर जीवन है, जीवन यात्रा है। तो वो चार विषय हैं, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ऐसे चार विषय हैं जिनके आधार पर उनका जीना होता है स्वयं के लिए, अपने कुटुंब के लिए। सोना है, खाना है, कैसे बचना है, कैसे मारना है और कैसे प्रजनन करके आगे बढ़ना है। ये उनको मेमोरी उनके माता पिता की मेमोरी से सीधे ट्रांसफर होती है उनके मस्तिष्क में। जन्म होते ही वो मेमोरी उनके पास होती है। कैसे भोजन करना है, क्या भोजन करना है, निद्रा कैसे लेनी है, किससे बचना है बचाने के लिए, बचने के लिए, और कैसे प्रजनन करना है। ये मेमोरी लेकर के पैदा होते हैं वो। ये उन्हें सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं आता। ये जितना भी कर्म है स्वयं के लिए है, सिर्फ अपने लिए। The animals survive primarily on the four counts. The physical union to produce the next limitations, and nobody has to teach them this. स्वयं अपने लिए, सबके लिए नहीं। And स्वयं अपने लिए, सबके लिए नहीं। and स्वयं अपने लिए, सबके लिए नहीं। and all these four, which is embedded in them, it is only for them and not for others. To ty čtyři vlastně, které jsou v nich vnořený, tak nebo jsou jejich součástí, tak to je pouze pro ně a ne pro. लेकिन मनुष्य जब पैदा होता है तो वह जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। वह स्मृति लेकर पैदा नहीं होता। स्मृतियां उसको बनाई जाती हैं पैदा होने के बाद। जहां वो जन्म लेता है, जिस अवस्था में रहता है, जिस कुल में रहता है, वहां के जो संस्कार हैं वही उसमें आ जाते हैं। धीरे धीरे करके उसको स्मृतियां दी जाती हैं। उसके पास स्मृतियां जो मेमोरीज हैं पिछले जन्मों की, वो संग्रहित नहीं है, स्टोर नहीं है। जैसा जीव जंतु में पहले से मेमोरी स्टोर है, ऐसे मनुष्य में, मानव में कोई मेमोरी पैदा होने के समय से स्टोर नहीं होती है, सिवाय रोने के। रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। बहुत अच्छा गुरुदेव। मरते समय की जो स्मृति है, रोते हुए हाय सब छूट रहा है, हाय हाय। तो जन्म लेते समय वही वाला पहली स्मृति, हाय हाय, रोना चालू, बस केवल बोल नहीं पा रहा है, भाषा है नहीं। वाओ, It's very interesting. Like you go to bed, that's the death. You are born again and you continue from the same one. And humans actually die crying and born crying. That was the end one I started from it. The point is very simple. The humans, they do not have any memory. रोता हुआ मरता है तो रोता हुआ पैदा होता है। Actually, I started from where Gurudev ended, so that's why there might be. It's a very simple thing that humans, if they, unlike animals, humans come blank and step by step they are educated and the memories are planted. How to sleep, how animal, plants, they do not need any education. Takže lidé It není to is learned transferováno. in the process Oni tohle učí a musí se to postupně teprve. because he dies crying. A Yeah, in human.
because To bylo jako na odlehčení. इसी क्रम में इसीलिए जीव जंतु पशु पक्षी में कर्ता का भाव नहीं आता है, क्योंकि वो उसको जन्म से ही मिला होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथ और प्रजनन 4 विषय, इसलिए कभी उसमें कर्ता का भाव नहीं आता। रेडियो खोल दीजिए, बजेगा, कैमरा ऑन कर दिए, रिकॉर्ड करेगा, कुछ उसमें अलग नहीं है। ठीक ऐसे ही मैं चूंकि पूरा जागृत नहीं होता है, जीवन तो संगठित हो जाता है, जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है, ये तो संगठित हो जाता है जीव जगत में, लेकिन जो उसमें मेधस है, मेधस पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। मेधस होता है लेकिन पूर्ण समृद्ध नहीं होता है। पूर्ण समृद्ध मेधस जो है सिर्फ मनुष्य में है, जो इसमें तैरता रहता है। ये बाकी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में नहीं होता, जिसके आधार पर मनुष्य कल्पनाशीलता करता है और कर्म स्वतंत्रता के लिए अपने कार्य कर पाता है। तो जिसकी कर्म स्वतंत्रता है वो उसकी कल्पनाशीलता के आधार पर है, इसलिए उसे मैं का भाव सदा बना रहता है कि मैंने किया। the animals are born, they do not have that metas which the humans have. It's all embedded where they move around only the 4 dimensions. Whereas in human, because they have the ability to conceptualize, so each of the actions, there is a sense of the person executing it, where the consequences of the ability to conceptualize. Na rozdíl od zvířat, ty lidské akce a akce jiním. मजेदार है। स्टीफेंस क्वेश्चन इज, दो रोग सबसे बड़े हैं, दो रोग सबसे बड़े हैं, There are 2 diseases. Dvě nemoci, And the big, दो रोग सबसे बड़े हैं, there are 2 diseases. dvě nemoci, And the biggest one. největší, अहंकार और मोह। Ego. ego. And there are certain restrictions. Let me very much clarify that certain words actually do not have the exact English translation. Moho is जिसके बगैर हम मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे। something that you are so deeply attached to it that you cannot survive without it. A připoutanost, to znamená, že It's called moho. क्षणिक सुख के लिए। Vy se připoutanost, Yeah. to je něco tak So silné, these are the 2 biggest diseases humans carry. že bez toho nemůžete žít, taková připoutanost. To jsou dvě největší nemoci. अब प्रश्न बनता है कि जब तक अहंकार रहेगा, जब तक मोह रहेगा, अहंकार रहेगा, तो आप में कर्ता का भाव बना रहेगा कि ये मैंने किया, ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, तो उसका भोग आपका बनना तय है। वो चाहे आपने अच्छा किया है और चाहे आप बुरा करते हैं, दोनों का भोग आपका बनता है। इस आधार पर इस मर्त्य लोक से छुटकारा बिल्कुल नहीं बनता है और बार बार भोगने के लिए इस मर्त्य लोक में आना ही पड़ता है। मुक्ति असंभव। ऐसे ही मोह है। जब हम मोह करते हैं, मोह के लिए हम दुखी रहते हैं। उस दुख से निकलने के लिए हम सुख का रास्ता तलाशते रहते हैं पूरे जीवन। दुख से सुख की ओर कैसे जाएं, ये प्रयास भी दुख ही है, ये सुख नहीं है। बहुत बड़े। ये दुख ही है। लगता है कि हम ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा सुख लेकर के हम नकली सुख घूमते रहते हैं और जैसे ही वहां से आशा टूटती है हम पूरा दुखी हो जाते हैं। तो दुख से शुरू किया था और दुख में आ जाते हैं। ये प्रमाण इस बात का है कि पूरी यात्रा ही दुख की है। सुख को प्राप्त करने की यात्रा दुख की यात्रा है, ऐसा बन जाती है। मोह आपके अंदर ऐसे होता है। अब इन 2 से बचा कैसे जाएगा, ये भी आपका प्रश्न बनता है। Humans have 2 very serious diseases embedded in them. Of this ego, people always claim, feel, think, express that this is the work that I have done. Kvůli ego. The ego, A vezmou si kredit a použijí k tomu, aby impossible to get out of the cycle or be druhu připoutanosti a musíme být znovu a znovu मोह को और डिफाइन कर सकते हैं कि जो शरीरगत, शरीर के आधार पर, जो प्रिय हित लाभ के आधार पर, वो मोह हो सकता है जो शरीर के आधार पे है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि अहंकार और मोह से मुक्ति कैसे पाई जाए। आपके हर उत्तर से एक प्रश्न निकल रहा है। a process, Gurudev. Every time your one question gives the answer itself raises another question, and the question here is raised as to what is the way out to be out of ego and excessive attack. Pokaždé váš dotaz přináší odpověď a ta odpověď přináší další dotazy a tentokrát ten dotaz zní, jaká je cesta ven. सबसे पहले कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाए। How to get rid of ego, how to be liberated from ego. Jak být osvobozen od The ega? first question. To je první otázka. बहुत सरल है, वेरी सिंपल। अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय, हम जो भी कार्य करते हैं अगर हम दृष्टा भाव से करते, साक्षी भाव से करते, तो हमारा अहंकार नहीं बनता है। The process is very simple. To get out of ego is to do whatever that we do with us. We were discussing this morning, that's separated, and you are drashta, you are an observer of your own act. Jako pozorovatel a jenom pozorovat to, co děláme a nebýt रहता है कि मैंने किया, तो आपके द्वारा किया गया कर्म क्रिया बन जाता है। तो आपके द्वारा किया गया कर्म क्रिया बन जाता है, तब भाव उठता है मैंने किया। जब आप दृष्टा भाव में रहते हैं कोई कर्म करते हुए, तो क्रिया ना होकर के घटना बन जाती है। तो भोग कर्म का बनता है, घटना का कोई भोग नहीं बनता। बहुत अच्छा गुरु बहुत बढ़िया तो सीधा उपाय है कि हम कर्ता बनने के स्थान पर कोई भी कार्य करते हैं, हम ईश्वर पर डाल देते हैं। सब भोलेनाथ ने किया, बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, ईश्वर ने किया। हम मात्र साधन हैं, घटना में हम केवल शामिल हैं, लेकिन अकर्ता भाव से, दृष्टा भाव से। यहाँ पर ब्रेक चाहिए सबको ताकि सभी मनन कर सकें। साक्षी भाव से। बहुत गहरा विषय है। शब्दों में तो सभी कह देते हैं कि बाबा ने किया, गुरुदेव ने किया, वो केवल शब्द और एक्सप्रेशन मात्र है, आंतरिक घटना नहीं है। इसलिए जब भी दरबार में आपने देखा सुना होगा, मैं कोई भी कार्य करता हूँ, दरबार के भक्त खड़े होकर के बहुत ही भाव से कहते हैं, गुरुदेव आपने हमें बचा लिया, हमारी रक्षा की, हम तो मर जाते, हम बच गए आपकी कृपा से। मैं उसकी बात पूरे होने से पहले बोलता हूँ, सब बाबा माँ करते हैं।
और मैं कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ, तो मेरा कोई भोग नहीं बनता। हम तो अरबों खरबों दरबार में सब संगार हो जाते हैं, तो मेरा कोई तो भाव कर्ता का है ही नहीं, अकर्ता का भाव है, इसलिए हमें कोई पाप नहीं लगता, हम पाप और पुण्य दोनों से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से हम जब घटना समझ करके कि ये घटना है और घटना में हम शामिल हैं क्योंकि प्रकृति की ऐसी इच्छा है, तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं और भोग नहीं बनते। तो तीनों जो गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, हम तीनों से बाहर हो जाते हैं, नहीं तो एक में तो फंसना तय है। इसलिए अकर्ता का भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अक्रियाशीलता का भाव हमको अपने कर्म बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। अन्यथा अगला जन्म भी हमारे कर्म बंधन के आधार पर आशा बंधन से युक्त होकर होना तय है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, भोग तय हरि है। राजीव जी, गुरुदेव, जो कर्म घटना हो, कर्म घटना हो, क्रिया से घटना में रूपांतरित होना है। हमारा जो एक्टिविटीज हमने जिसको अपनी मान लिया है वो हमारी एक्टिविटीज नहीं है, ऐसा समझ लेना। गुरुदेव थोड़ा सा विराम चाहिए ट्रांसलेशन से। ये बहुत गहरे में जा रहा है, बहुत गहरा विषय है ये गुरुदेव। विषय बहुत गहरा है, इसको कंप्लीट कर देते हैं एक बार, अगला एक पैरा और कंप्लीट करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। गुरुदेव गुरुदेव यहाँ पे विराम चाहिए, अभी कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं हो रही गुरुदेव, बस इसी में घुसने की इच्छा हो रही है कि प्रत्येक कर्म घटना का रूप कर्म को घटना में कैसे परिवर्तित करें, क्वेश्चन इज। आई विल ट्रांसलेट लेटर, लेट मी, आई एम जस्ट। इसके आगे जब जाते हैं, दूसरा है अहंकार, के बाद मोह। जी। मोह से बचने का क्या उपाय है? जी गुरुदेव। जितने भी कर्म अभी हमने चर्चा की स्वयं के प्रिय हित और लाभ के लिए होते हैं, उनमें क्रिया ही क्रिया है, जीव चेतना है, जीव जंतु पशु पक्षियों की चेतना है, शरीर के आधार पे कार्य करना, शरीर मान के अपने को जीना, ऐसा जीना, ऐसी क्रिया वो कर्म बन जाती है, उसका बंधन बनता है। संबंधों में फिर यह, लेकिन जब न्याय धर्म और सत्य के आधार पर जी गुरुदेव, हम अपनी चेतना का सदुपयोग करते हैं, तो पूरी सृष्टि के लिए करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं। पदार्थ अवस्था हो, चाहे वनस्पति अवस्था हो, चाहे जीव अवस्था हो, चाहे मानव अवस्था हो, ये चार अवस्थाएं हैं। अभी तक तो तीन अवस्था ही मानी गई संसार में, ये पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है, जीव अवस्था है। मनुष्य जीव नहीं है, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है, वो स्मृति लेके पैदा नहीं हुआ है। सारे जीव जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब अपनी स्मृति लेके पैदा होते हैं। अगर गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा, उससे मक्का पैदा नहीं होगा, स्मृति बीज में भी है। बरगद के बीज से बरगद ही पैदा होगा, ये स्मृति है, सब में पड़ी है। पूरा पदार्थ अवस्था, सोने का टुकड़ा 5 किलो का हो, आप उसके 500 टुकड़े कर दीजिए, सोना ही रहेगा। पदार्थ अपना रूप नहीं बदल सकता, उसके अंश परमाणु अंश निश्चित है, उन अंशों के बीच की दूरी निश्चित है, परमाणुओं की संख्या उसके ऑर्बिट में निश्चित है, उसका टूटना भी निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी ऑर्बिट जो है वो टूटा हुआ है, पूरा नहीं है, पहले से अतिरिक्त है। सोना कुछ और बनने की फिराक में है, बिल्कुल गुरुदेव, अभी कोयले से बना है, बिल्कुल गुरुदेव, रूपांतरित होकर आया है, अभी संपूर्णता के आधार पर आ रहा है, पूर्णता की ओर अग्रसर है। तो जब हम बात करते हैं मोह की, तो मोह से कैसे बचा जाए, तो मोह से बचने का बहुत सरल तरीका है। हम जब तक किसी को शरीर के रूप में जानते हैं और अपने आप को भी, सबसे पहली घटना, अपने आप को अगर हम शरीर माने रहते हैं, अपने शरीर के साथ हम अपने जीवन को स्पष्ट नहीं देख पाते, जब तक हम ये नहीं समझ पाते कि यह शरीर जीवन और इस शरीर से बना हुआ ये मानव शरीर है, दो चीजों से मिलकर बना है, तब तक हम सामने वाले को भी ऐसा ही माने रहते हैं कि यह भी मात्र शरीर है। शरीर के साथ शरीर का जो निर्वाह है वो मोह पैदा करता है। मोह से बचना है तो अपने जीवन को समझना होगा, अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। जब अपने जीवन पर दृष्टि रहेगी तो सामने शरीर नहीं, फिर जीवन ही दिखेगा व्यक्ति का। और जीवन से जीवन की जब आप गणना करेंगे, तुलना करेंगे, तो मोह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह जीवन जो मुझ में है वो संसार के प्रत्येक मानव में वह जीवन उपलब्ध है। सबका जीवन एक जैसा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, सबका जीवन एक जैसा ही है, उसका डिजाइन एक ही जैसा है। कैसा डिजाइन है जीवन का? जीवन का डिजाइन है प्रत्येक का पैदा होने से लेकर मरने वाले दिन तक एक ही चाहना है, सुख की चाहना। इस आधार पर समस्त जीवन की चाहना एक जैसी है। मुक्त होना चाहता है प्रत्येक जीवन, इस सब की चाहना है। और सुख कौन सा चाहता है? निरंतर सुख बना रहे, वह सुख जो कभी समाप्त ही ना हो, दुख कभी आए ही ना, ये मनुष्य की चाहना है, ये मानव लक्ष्य है। और ये तभी प्राप्त होगा जब स्वयं में समाधान होगा, और स्वयं में समाधान तभी होगा जब आप अहंकार और मोह से मुक्त हो जाएंगे। अब कर सकते हैं ट्राई। Yes, complete. उतना पी लिया गुरुदेव। It's a question that is to be asked as a question because this morning only, आज ही मैं बता रहा था गुरुदेव, कुंभ के बाद की घटना कि किस रूप से अहंकार ने मुझे किस कर लिया था और छू लिया था। और यह I'm sorry, this what Gurudev just spoke of, how to get rid of ego and excessive attachment. Tak teď Gurudev hovořil o tom, jak se zbavit ega a nadměrné připoutanosti. Or action, Když se sledán, the karma becomes tomu, abych se stal egoistou. Gurudev also cited the example who did it for them. Gurudev dal příklad, když Thing where we see this as a body, as life of he is dear to me, I will be benefited from him. uvědomuje a pokud který profitujete a myslíte, že bude profitovat případně Entity that I am not the body and life just like despite being in behavioral exchanges. vlastně i ostatní kolem vás a tím pádem vás to vede k jasnému, k čistému. And it is recommended that everybody should practice it. कर्म को घटना के रूप में परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास
कर्म को घटना के रूप में परिवर्तित करने का आप सबको अभ्यास करना चाहिए। ये बड़ा अभ्यास है। कोई भी काम किया है आपने, किसी को दान दिया, दान देते आप बहुत प्रफुल्लित होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आज हमने भूखे को, और 10 जगह बताते भी हैं, आज हमने वहां रुक के, वो भूखे थे, उनको हमने भोजन कराया और गाड़ी में कंबल रखे थे, सबको दिया, और 10 जगह कम से कम बताते हैं। कर्ता का भाव बहुत पुष्ट हो रहा है, आपको उसका पुण्य मिलना तय है, लेकिन आप फंस रहे हैं, आप फंसते जा रहे हैं, इस मर्त्य लोक में आप फंसते जा रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास पुण्य हो गया, गहरी स्मृति हो गई, पुण्य किया है, अच्छा भोग मिलेगा, अगला जन्म तय है। आप 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? तो बहुत खराब करके भी, जैसे हम 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, दोबारा जन्म लेना है, वैसे बहुत अच्छा करके भी हमारे अच्छे भोग बनते हैं और दोबारा जन्म लेना बनता है, उससे बचा नहीं जा सकता। 84 लाख योनियों के कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं। इसलिए राजसी तंत्र जो विष्णु से आधारित है, मुक्ति नहीं, शिव से ही मुक्ति है, क्योंकि वो आपको राजसी सुख देंगे, राजस है, तो वो पालनहार हैं, पालने वाले हैं, आपको सुख देने वाले हैं, तमाम भौतिक सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। तो जो भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, उनमें और फंसते जा रहे हैं, फिर आप उनको और प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ बांटते भी हैं, आपके पास ज्यादा हो जाती है तो उसके पुण्य बनते हैं, तो फिर से भोगना और फिर से फंसना बनता है। हाँ, तो भोग रहे हैं, यूज कर रहे हैं या फिर आगे बांट रहे हैं, वो आना जाना क्रम बना रहेगा। जब तक सतो गुण से भी पार न चले जाए, जब तक हमने बुरे कर्म जैसे किए हैं उनसे मुक्ति पाए, ऐसे जो अच्छे कर्म किए हैं उनको घटना बना करके निकाल दिया जाए और उनसे मुक्ति पाए, यानी सतो गुण भी मुक्ति पाए। तो बगैर तीनों गुणों से त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत है, उस अवस्था में जाएंगे तो उन तीनों से मुक्त होकर के ही जाना संभव है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों ही अवस्थाओं में करके मैंने किया, मैं फंसता हूँ। इस फंसाव से बचने का एक ही उपाय है कि अहंकार को दृष्टा भाव से पराजित किया जाए और मोह को पराजित करने के लिए जो अभी दरबार ने बताया आपको, उस आधार पर, जीवन के आधार पर, जीवन की दृष्टि के आधार पर कि मैं भी जीवन हूँ, सामने वाला भी जीवन ही है, जीवन ही हमसे बात कर रहा है, शरीर बात नहीं कर रहा है, मेरे अंदर से भी जीवन ही बात कर रहा है, शरीर नहीं बात कर रहा है। यहाँ शरीर गिर गए, जीवन ऊपर है, जीवन एक जैसा है सबका, तो जीवन न छोटा दिखता है न जीवन बड़ा दिखता है, जीवन सबका एक जैसा है, उसकी कार्य क्षमता एक जैसी सबकी है, सबकी चाहना एक जैसी है, सबका कार्यक्रम भी एक है, मुक्ति लक्ष्य भी एक है, निरंतर सुख। तो ये सब सारा जीवन के आधार पर जब देखते हैं तो मोह से मुक्ति होती है कि शरीर नष्ट हुआ, ये तो आता ही जाता है, जीवन नष्ट नहीं हुआ क्योंकि जीवन कभी नष्ट होता नहीं, तो उस आधार पर हम जीवन को कभी मरा हुआ नहीं समझते, तो दुख नहीं होता। आप देखते हैं दरबार में लोग आते हैं, अभी कल ही उनका घर वाला क्यों न मरा हो कोई सदस्य, दरबार जैसे ही उनका मोह खत्म करता है, वो सामने खड़े होकर हंसते बातें करते हैं, कोई दुख नहीं होता, कहते हैं अरे गुरुदेव उनको तो मुक्ति मिल गई, सब ठीक है, कोई दिक्कत। मोह फिर भय पैदा करती है, मोह से भय उत्पन्न, क्यों? मोह से भ्रम होगा पहले, भ्रम से मोह बने, मोह से भ्रम बने, भय बनेगा, रोग बनेंगे, कष्ट आएंगे, असाध्य हो जाएंगे, तड़प तड़प के उन्हीं में मृत्यु होती है, फिर से अगला जन्म लेने के लिए तैयार हो जाते। बचने के लिए बस हम चीजों से बचे। बहुत बड़ा अभ्यास है कि आप अपने कर्म को घटना में परिवर्तित कर दें। ये तो हो रहा है, ये तो हुआ है, मैं तो शामिल हूँ, घटना में मेरा प्रस्तुतिकरण है केवल, हम अच्छे से शामिल हो गए, हमने अपना रोल निभाया है। जैसे मंच पर कोई हनुमान जी का रोल करे, उसे पता है मैं हनुमान नहीं हूँ, भूमिका अदा कर रहा हूँ। जब ऐसा ही भाव हमारा जीवन में भी हो जाए, जीने में आ जाए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा चरित्र है, कैरेक्टर है, तो कर्म से मुक्ति पा जाए ऐसा। तो हाँ, क्या है जुगाड़ है, कितने बजे? हाँ है ना, टाइम 10 मिनट है। अभी कुछ दरबार के बच्चों ने कुछ दिए हैं क्वेश्चन, उसको हल्का सा करके समाप्त, छोटे छोटे, तो बहुत अच्छे से सवाल लिखे, कई घंटे के उत्तर है, प्रश्न बहुत सारगर्भित है, तो कुछ चीजें बहुत अच्छी। जैसे अभी एक प्रश्न पूछा है एक बच्चे ने कि गुरुदेव जैसे जानवर होता है उसमें अगर जीवन नहीं होता, चित्त नहीं होता है, तो उनकी स्मृतियां कहाँ स्टोर होती हैं? आहार निद्रा भय की स्मृतियां कहाँ स्टोर होती है? तो अभी जैसे बताया था कि जितने भी पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, ये भी अलग अलग प्रकार है, कुछ उद्भिज हैं, कुछ अंडज हैं, कुछ पिंडज हैं, ऐसे अलग अलग ढंग से उत्पत्ति है। इस उत्पत्ति में उनके साथ उनकी मेमोरी इनबिल्ट है। जैसे कोई रेंगने वाला कीड़ा है, तो उस रेंगने वाले कीड़े का की जो स्मृति है वो पैदाइशी है, स्टोर है, उसमें उतना रहेगा, सीमित स्मृति उसका सबसे आगे, वो स्टोर है ही, उतना स्टोरेज ही उसके पास है कि आपके पास 1 GB का स्टोरेज है, उससे आगे नहीं कर सकते आप। सैटेलाइट फोन आएगा तो अनलिमिटेड है, आपके पास मोबाइल है कि नहीं साहब, आपके पास 500 GB आप स्टोर कर सकते, इससे नहीं कर सकते, ऊपर तो आप नहीं कर सकते, 1000 GB कर सकते, इस ऊपर नहीं कर सकते। तो हर जीव जानवर की स्मृति अलग अलग आधार पर स्टोर है, लेकिन उतनी ही रहती है। उसी आधार पर वो आहार निद्रा भय प्रजनन के आधार पर अपने जीवन यात्रा को शुरू से अंत तक निभाता है, उससे बाहर नहीं जा पाता, उसके अंदर ही रहता है। तो उसके पास कल्पनाशीलता केवल नहीं है और कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन ऐसा सभी जीव जंतुओं में नहीं है। उसमें कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है, जैसे उद्भिज हैं, इनमें जीवन किसी में नहीं है। पिंडज हैं, अंडज हैं, अंडज में भी सभी में नहीं होती, कुछ में है, पिंडज में भी सब में नहीं है, लेकिन कुछ जीव जंतुओं में जीवन है। सब पशु पक्षियों में, सभी जीव जंतुओं में जीवन नहीं होता है। जीवन संगठित होता है आत्मा के साथ, कंप्लीट होता है, उसके साथ जब 4 चीजें मिलती हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, तो जीवन संगठित हो जाता है। ऐसा जीवन कुछ पशु पक्षियों में, जानवरों में पाया जाता है। आप चींटी को बुलाओ, चींटी को, खजूरा जा रहा हो, तिलचट्टा जा रहा हो, बुलाओ, आओ आओ ये लो खाओ, भागेगा, उसके अंदर भय है, उसको सिखाया गया बचो, मार देगा तुमको। आहार निद्रा भय प्रजनन 4 विषय है उसमें, बचता है। आप बुलाओ छिपकली को, आओ ये खा लो, भागेगी, आपके बुलाने से नहीं आ रही, मतलब इसमें जीवन नहीं है, सिर्फ इसमें आत्मा ही है। आत्मा के साथ जो 4 उसके इंजन के साथ जो 4 पहिए हैं, बुद्धि चित्त वृत्ति मन
जीवन उसके साथ इनबिल्ट नहीं है। जब ये पांचों इनबिल्ट हो जाते हैं, जिस जीव जानवर में ये उसे जीवन कहते हैं, यह जीवन तो है लेकिन उसमें जो मेधस है तो, लेकिन अभी समृद्धशाली नहीं है, संपूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए उसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन उसमें जीवन है, ये कैसे पहचानेंगे? जैसे छिपकली में नहीं है जीवन, पहचान लिया आपने। तो जो आपके बुलाने से आ जाए, भगाने से चला जाए, समझो इसके अंदर जीव के अंदर जीवन है। आप बुलाते हैं गाय को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आती है, आप रोटी खिला देते हो, चलो जाओ, गई, मतलब इसके अंदर जीवन है। आप कुत्ते को बुलाते हैं, इधर आओ, आ गया, आपने कुछ खिला दिया, अब चलो भागो यहाँ से, चला भी गया, मतलब इसमें जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है उन चार विषय पर ही काम करता है, उसकी अपनी सीमा है सोचने विचारने की, उसकी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन यही जीवन जब मनुष्य शरीर को धारण करता है तो उस मनुष्य शरीर के अंदर जो मेधस है वो समृद्धशाली है और संपूर्ण है। तो उस संपूर्ण मेधस के आधार पर मनुष्य के अंदर कल्पनाशीलता यानी सोच विचार की क्षमता और कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म करने की स्वतंत्रता उसके अंदर विद्यमान हो जाती है। ऐसा केवल मनुष्य के साथ। तो ये कल्पनाशीलता और जो हमारी, इसीलिए मनुष्य इन सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग है। जो 3 श्रेणी महापुरुषों द्वारा बताई गई, ऐसा अगर आप अध्ययन करेंगे, हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन आगे अध्ययन बनता ही अगली पीढ़ी में। अगली पीढ़ी का जो अध्ययन बनता है, वो जो अध्ययन है वो स्वाभाविक है, क्रमवार उत्तरोत्तर अध्ययन बनता जाता, आगे बढ़ते जाते हैं और अध्ययन के क्रम में समझते जाते हैं कि अवस्थाएं 3 नहीं है, 3 अवस्थाएं नहीं है, अवस्थाएं 4 हैं। अभी सभी धर्मशास्त्रों में सभी जगह अवस्थाएं 3 ही बताई गई हैं कि 3 ही अवस्था है, अवस्थाएं 3 ही बताई गई हैं। जो 3 अवस्थाएं हैं वो पहली पदार्थ अवस्था, दूसरी प्राण अवस्था वनस्पति जगत और तीसरी जीव अवस्था। तो जीव अवस्था में ऐसा मान लिया गया कि मनुष्य भी शामिल है, मानव भी शामिल है, लेकिन मनुष्य इस जीव अवस्था में शामिल नहीं है। मेधस संपूर्ण होने के आधार पर वह जीवन समृद्धशाली अवस्था में है, उसका मेधस समृद्धशाली है, कंप्लीट है, समृद्ध है। उस आधार पर मनुष्य में कल्पनाशीलता और साथ में कर्म स्वतंत्रता रहती है। इस आधार पर मानव अवस्था अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर ज्ञान अवस्था कहलाती है। तो जीव अवस्था से मानव अवस्था ज्ञान के आधार पर संचालित होती है। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों अलग अलग, कोई चपरासी है तो कोई IAS ऑफिसर है, कोई किसान है तो कोई कुछ बन जाता है। चारों का अपने ज्ञान के आधार पर विकास होता है। लेकिन अगर डॉबरमैन है, कुत्ता है, तो उसके 4 बच्चे होंगे, चारों डॉबरमैन की तरह रिएक्ट करेंगे। वो कभी जर्मन शेफर्ड की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। जर्मन शेफर्ड होगा तो वो कभी लेब्राडोर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। वो लेब्राडोर की तरह रिएक्ट करेंगे। उनके खान पान की, रहने की जो आदतें हैं वो अलग हैं, हमेशा वही रहेंगी। शेर की आदत हमेशा शेर के बच्चे की वही रहेगी, बकरी के बच्चे की हमेशा बकरी के बच्चे की आदतें रहेंगी, बदल नहीं सकती। शेर मांस खाएगा, बकरी घास खाएगी, हरा चारा खाएगी। आदमी दोनों खाएगा, चारा भी खाएगा यानी घास फूस सब्जी भी खाएगा और मांस भी खाएगा। तो मनुष्य अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर अपनी कर्म स्वतंत्रता को संचालित करता है। इस आधार पर मनुष्य चौथी अवस्था है, ज्ञान अवस्था है, वो अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर जीता है। So far in all the scriptures, there has been across the world, across the religion, there Analyzovat a kombinovat. I can see that is with a complete independence, with the possessed strength. If the other breeds will identically do that, so on the basis based on their power to conceptualize, it has the सत्वगुण से पार जाने का यही समाधान है, दूसरा कोई। हाँ बिल्कुल, इस अहंकार और मोह से मुक्ति का सरल उपाय है। बहुत सुंदर डिस्कशन रहा, ये जो पहला सत्र था बहुत अच्छा भी था। हाँ बिल्कुल, इस अहंकार और मोह से मुक्ति का सरल उपाय है, सत्वगुण से पार जाने का यही समाधान है, दूसरा कोई। पूरा जो जीव जगत है वो ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग और उसके बाद फिर अगला सेशन ध्यान का होगा, साधना का होगा। अभी जैसे शिव है, जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो हम शिव के समीप होते हैं। जब अभौतिक जगत की कल्पना करते हैं, उस ओर जाते हैं, तो शिव से महाशिव के लिए यात्रा शुरू होती है। तो शिव को समझने के लिए पंचमुखी शिव को समझना आवश्यक है। ये शिव के 5 मुख हैं क्या? 5 मुख है ना। 5 मुख का मतलब है एक पूरब है, एक पश्चिम है, एक उत्तर है, एक दक्षिण है, एक ऊर्ध्व मुख है, चारों से हट। तो ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं कि जब शिव ने इस भौतिक जगत में जीने के रास्ते बताए, व्यवस्था बताई, तो उसका नाम दिया गया तंत्र, शिव का तंत्र। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, वेदों से पहले से है ये तंत्र। वेदों की रचना आदिकाल में मानी गई है, शुरुआत में, उनसे भी पहले तंत्र है। जब से पुरुष है, जब से प्रकृति है, तब से तंत्र है, तब से व्यवस्था है। हर चीज व्यवस्था से गुजरी है, व्यवस्था में है, व्यवस्था में ही रहेगी। आपके बिगाड़ने से बिगड़ेगी नहीं, आपके बनाने से बनेगी नहीं। आप चाहें कि आप सेब के पौधे लाके यहाँ रोपे, सेब पैदा होगा, नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, संख्या नहीं बढ़ेगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में फर्क आएगा, खाने योग्य नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। तो जो शिव का तंत्र है आपको व्यवस्था बताता है। और ऐसी कथा है कि उन्होंने पार्वती जी को इसकी व्याख्या की उनके सामने। तो जब उन्होंने पूर्व मुख, जब पार्वती उनके पूर्व मुख की ओर बैठती हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख के पास बैठती हैं और उनसे जब प्रश्न करती हैं तंत्र के विषय में, तो जो पहला उनके श्री मुख से जो उद्घाटित होता है उसे हम सिद्धांत तंत्र कहते हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारी कुंडलिनी क्या है, हमारे परमाणु अंश क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु के आधार पर रचे गए अणु क्या है, अणु के आधार पर पिंड क्या है, पिंड के आधार पर जीव जगत कैसा है, ये सारी रचना, चक्र क्या है, ध्यान साधना क्या है, ये जो सिद्ध तंत्र, सिद्धांत
शांत तंत्र बोला जाए, वो पहला तंत्र उदय होता है। वो पूर्वाभिमुख होकर जो बैठी है पार्वती, इस कारण से हुआ। फिर बोले कि पश्चिम मुख की ओर बैठी पार्वती, तो कौन सा तंत्र व्याख्यायित किया शिव ने? तो अगध तंत्र है, उसे अगध तंत्र कहा गया। आयुर्वेद में अगध तंत्र की बहुत प्यारी व्याख्या है, यानी विषों की व्याख्या है, विष की, जहां विष के बारे में बताया गया है जो प्राण हरने वाले विष हैं, सभी के प्राण हर लेते हैं, उन विषों के बारे में सारी जानकारी शिव ने दी पार्वती को, पूरी व्यवस्था के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए। तो विष को रसायन में कैसे बदला जाए, विष को ऐसे कैसे प्रयोग किया जाए कि वह विष हमारी आयु को बढ़ा दे, हमें आरोग्य प्रदान करे, मरते हुए को जिंदा कर दे। जो विष मार रहा है वही विष मरते को कैसे बचा ले। सर्प के दंश से कोई व्यक्ति मर रहा है, उसी सर्प के विष से तैयार औषधि से विधि पूर्वक और उसके प्राण बचाए जाते हैं। ऐसी व्यवस्था विषों से कैसे बचा जाए, विषों को कैसे लाभकारी बनाया जाए, प्राणदायी बनाया जाए, प्राण ऊर्जा बढ़ाई जाए विषों से, इसको तंत्र नाम दिया, जो वो अगध तंत्र का नाम दिया। फिर जब पार्वती उत्तर की ओर मुख करके बैठती है, तो पूछती है, ये लंबी व्याख्या है, थोड़ी आराम से करेंगे। तो उत्तर की ओर मुख करके बैठती है पार्वती, तो जो वो ज्ञान देते हैं पार्वती को, वो ज्ञान देते हैं कि वशीकरण, मोहिनी विद्या, तंत्र में ऐसी विद्या का की जानकारी उनको देते हैं शिव। तो वो जब उत्तर की ओर बैठती है, तो जब दक्षिण की ओर उनको मुख है उधर बैठती है, तो वो दक्षिण मुखी हो जो तंत्र है उसे अघोर तंत्र कहते हैं, जिसमें मारण, उच्चाटन है, तमाम विनाशकारी चीजों का उसमें शिव उल्लेख करते हैं। पार्वती को उसको ज्ञान देते हैं कि कैसे इसको होता है। अघोर तो बोलते हैं दक्षिण काली, वहाँ महाकाली, माँ तारा, ऐसे त्रिपुर सुंदरी, ऐसे जितनी भी देवियां हैं, श्री 10 महाविद्याएं हैं, जितना भी सारा सब सक्रिय है उसमें। तो शत्रु का नाश कैसे हो, क्या हो, ऐसे दक्षिण मुखी करके ज्ञान ऐसे बढ़ना है। इसके विस्तार से चर्चा करेंगे कभी, साधकों के समझ पूरा और विस्तार से करेंगे। अभी तो गरम गरम ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, सब लोग कर लें, आधे घंटे का ब्रेक है, देन अगला सेशन स्टार्ट करेंगे। हरि हर, धन्यवाद।